So in this lab, like we will be revisiting a technique that we have talked about before as well. And this technique, in fact, this is a group of techniques, and they are called Monte Carlo methods or Monte Carlo techniques. Okay? Monte Carlo methods or Monte Carlo techniques. I need to be sure कि ये recording ठीक हो रही है. Now, what do we mean by Monte Carlo methods or Monte Carlo techniques? Now, now there was a scientist. I don't remember his exact name, but I guess he was like he worked in the field of nuclear engineering and nuclear physics. So I hope like you know about this game solitaire. ठीक है? Do you know solitaire? ताश की एक गेम है जो कि आप अकेले खेलते हैं. So he wanted to know like what is the probability that if I play a solitaire game, I'll win it or I'll complete it. Okay. So is there a way of knowing the probability or the chances of winning a game of solitaire? So the person wanted that scientist wanted to know that. And the solution to this problem, like he came up with this solution to the problem that the only way of determining this probability, like there is no way that I can come up with a mathematical formula through which we can find out the probability of winning a game of solitaire. ठीक है? तो 52 कार्ड्स हैं, वो कार्ड्स किस तरीके से शफल होते हैं और किस तरीके से आपको मिलते हैं और फिर कैसी सिचुएशन होती है. इट इज़ इम्पॉसिबल टू फिगर दैट आउट मैथमेटिकली. So we cannot have a formula which will calculate the probability for us. कि आप what are the chances of winning a game of solitaire? So then he said like he like arrived at this conclusion that the only way of finding out uh, the chances or probability of winning a game of solitaire is to play that game over and over again. So 1000 मरतबा आप वो game खेलें, and then you find out कि how many times did you win that game and how many times did you lose that game. ठीक है? So this is the frequentist approach to probability. Like अगर आप एक coin toss करते हैं, so analytically you know कि if it is a fair coin, so दो ही आपके पास possible outcomes हैं, heads और tails. So the chances के heads आए 50%, the chances के tails आए 50%, one out of two, one by two. So there is an analytic way of determining the possibility or probability of getting a heads or a tails when you toss a coin. ठीक है? अच्छा, इसको आप वेरीफाई कैसे करते हैं कि हाँ वाकई में अगर हम किसी कॉइन को टॉस करें तो द प्रोबेबिलिटी कि वो हमारे पास हेड्स आएगी दैट इज 50% एंड द प्रोबेबिलिटी कि वो टेल्स आएंगी दैट इज 50%. सो वन वे ऑफ वेरीफाइंग इट इज कि आप ये जो एक्सपेरिमेंट है यू परफॉर्म इट a large number of times. ठीक है? एंड देर आर चांसेस कि अगर आपका कॉइन ठीक हो और आप एक्सपेरिमेंट ठीक तरीके से परफॉर्म करें, so if you throw the coin 10,000 times, तो लगभग 5000 मरतबा आपके पास हेड्स आएंगे, 5000 मरतबा टेल्स, लगभग ऊंच नीच हो सकती है. यू कैन हैव 4990 मरतबा हेड्स आए, 5000 10 मरतबा टेल्स आए. यू कैन हैव दीज सिचुएशंस, बट मोर और लेस दोनों प्रॉबिलिटीज जो हैं वो 0.5 के या हाफ के करीब करीब हों. ठीक है? सो वन वे ऑफ फाइंडिंग आउट अ प्रॉबिलिटी इज द एनालिटिक वे, कि आपको पता हो कि तमाम पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं और उन पॉसिबल आउटकम्स में जो डिजायर्ड आउटकम है वो कितनी मरतबा आ रहा है. दिस इज वन वे. द अदर वे इज कि यू परफॉर्म दैट एक्सपेरिमेंट अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स एंड यू फाइंड आउट कितनी मरतबा कौन सा आउटकम आता है. ठीक है? सो द Monte Carlo वे इज प्रिसाइजली दैट वे. Monte Carlo टेक्निक में आप कोई काम बार बार करते हैं एंड देन यू फाइंड आउट कि कितनी मरतबा कौन सा रिजल्ट आता है. ठीक है? दैट इज द बेसिक अप्रोच. So people use this technique to find out to estimate the outcome of different events. For example, FIFA World Cup आ रहा है जी 2022 का. Say for example, we want to predict the winner. Who will be the winner of FIFA 2022 World Cup? We want to make that prediction. उस prediction पे बहुत सारे लोगों का बहुत सारी चीज़ों का इन्हिसार होता है. So there is a huge industry of betting. लोग शर्तें लगाते हैं और फिर उन शर्तों पे पैसे कमाते हैं या लूज करते हैं. So people want to know about the odds of कि अगर मैं इस टीम पे पैसे लगाऊं तो क्या चांसेस हैं कि मैं जीतूंगा. So people make predictions, estimations कि ये मैच
कौन सी टीम जीतेगी. सो वन इज के एक्सपर्ट्स बैठे हैं, 10 एक्सपर्ट्स हैं, उनमें से 6 एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जी ब्राज़ील जीतेगा, 4 एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नहीं जर्मनी जीतेगा. ठीक है, तो आप अगर ब्राज़ील पे पैसे लगाएं तो मे बी योर चांसेस ऑफ विनिंग इज आर मोर. दैट इज़ वन वे. द अदर वे इज़ के यू परफॉर्म सिमुलेशन रन ऑफ द टूर्नामेंट या मैचेस. ठीक है, वी हैव अ हिस्ट्री के कितनी मरतबा ब्राज़ील और जर्मनी में मैचेस हो चुके हैं, कितनी मरतबा जर्मनी जीता है, कितनी मरतबा ब्राज़ील जीता है. फिर हम उसको प्लेयर्स और टूर्नामेंट्स पे वी कैन कंडीशन दैट. फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट मैचेस का है. तो वैसे तो अगर इफ़ वी लुक एट द हिस्ट्री, तो द चांसेस कि पाकिस्तान और इंडिया में मैच होगा वो पाकिस्तान के जीतने के ज़्यादा हैं, बिकॉज हिस्टोरिकली वी हैव वन मोर मैचेस देन इंडिया. बट historic history जो है ना, that is not enough. You have to condition that on certain other factors. मैच में विराट कोहली खेल रहा है या नहीं खेल रहा, या मैच में पाकिस्तान का कोई की प्लेयर मिसिंग है या खेल रहा है. So that changes the odds of winning or losing. So people basically they simulate entire tournaments on a computer. So 1,000 मरतबा, 10,000 मरतबा, 1 billion times they will basically run the FIFA 22 World Cup on their computer. और वो हर मैच का हर स्टेज के विनर्स को प्रोडिक्ट करेंगे. तो इस मैच में जो है ये इस टीम के जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इस मैच में इसकी इस ग्रुप की जो टॉप टीमें हैं वो ये होंगी, सेमीफाइनलिस्ट ये होंगी, क्वार्टर फाइनल में ये होंगी, विनर्स जो है वो ये होंगे. सो दैट कैन बी डन यूजिंग अ कंप्यूटर, यूजिंग प्योर रैंडम नंबर्स. ठीक है, रैंडम नंबर्स के जरिए और कंप्यूटर्स के जरिए यू कैन डू दैट. ठीक है, यू कैन मेक दोज एस्टिमेशंस. दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ दैट. यहाँ पे हम और कुछ नहीं कर रहे, वी आर एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ पाई. We are estimating the value of pi. So how can you estimate now? Pi is an irrational number. All the values of pi that you use, they are estimates. वो pi की estimated values हैं. 22/7 भी एक estimated value है, वो एक rational number है. 22/7 is a rational number. Pi is an irrational number. Similarly 3.17 वो जो value है वो भी एक irrational number है. Again it's an approximation. So you can try to approximate the value of pi using this particular technique. उस टेक्निक का जो बेसिक वो है मैं आपको समझा देता हूँ. So think of this board as a board at which you can throw darts. आपने darts वाली गेम खेली है? ठीक है, वो जो सर्कल घुमाते हैं और लोग डार्ट फेंकते हैं, तो जहाँ पे हो तो उसके मुताबिक कोई इनाम मिलता है या वगैरह. अब आप यूँ समझ लें कि यू हैव दिस बोर्ड, दिस इज अ स्क्वायर बोर्ड. ठीक है, you have this square board and its dimensions are 1 by 1, 1 meter by 1 meter, or 1 foot by 1 foot, whatever the units are, but its dimensions are 1 by 1. You have this square board. Okay? And say for example you have this piece of a circle. ठीक है, एक सर्कल को अगर आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, so this is 1/4 of a circle that you have here. ठीक है, this here is 1/4 of a circle. Now if you randomly throw darts at this board, ठीक है, तो कितने darts यहाँ पे लैंड करेंगे, that depends upon the area. यहाँ पे कम darts लैंड करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा darts लैंड करेंगे. अगर आप aim नहीं ले रहे, if you are not aiming, if you are just throwing darts randomly and there is no other way for those darts to go but this board, ठीक है, so depending upon the area, ठीक है, तो जो डार्ट्स लैंड करेंगे दोज वुड बी प्रोपोर्शनल टू द एरिया. ठीक है, अगर एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा डार्ट्स यहाँ पे लैंड करेंगे, अगर ये एरिया कम है तो कम डार्ट्स लैंड करेंगे. ठीक है, द पॉइंट इज कि द नंबर ऑफ डार्ट्स, द फ्रैक्शन ऑफ डार्ट्स दैट लैंड हियर, it is related to the area. It is related to the area of this piece of the circle. ठीक है, तो अगर हम 1,000 डार्ट्स थ्रो करते हैं and we find out कि कितना fraction जो है वो इस area में land कर गया है, so that fraction can give us an estimate of the area of this part. वो हमें इस part की area का एक estimate दे सकता है. ठीक है, area and the number of darts, they are proportional. ठीक है, अगर हम ज़्यादा area है इस circle का, इस square में, ये जो circular region का area है, if it is more darts will land in this area. If it is less number of darts would land here.
ठीक है, तो हम इसको रिवर्स कर लेते हैं. वी थ्रो डार्ट्स रैंडमली एंड देन वी काउंट कि कितने डार्ट्स यहाँ पे लैंड कर गए. उससे हम एरिया का एस्टिमेट लगाते हैं. ठीक है, वी नो कि एरिया अफेक्ट्स द नंबर ऑफ डार्ट्स लैंडिंग हियर. So once the darts have landed, so we just by measuring the fraction of darts which have landed here, we want to estimate the area. ठीक है? अच्छा. Now, what is the formula for area? How do you calculate the area of a circle? Pi r square. If the circle is a unit circle, उसका मतलब है कि radius of that circle is 1. So its area is going to be pi. Pi 1 square is equal to pi. So if we estimate the area of a unit circle, we can estimate the value of pi because the area of a unit circle is equal to pi. So this is how we are going to estimate the area, the value of pi. We are going to estimate the value of pi by estimating the area of a unit circle. And we are going to estimate the area of a unit circle by throwing random darts, by throwing darts randomly at that circle and counting the fraction of darts which land inside this circular region. तो ये उस सर्कल का चौथा हिस्सा है. If we multiply this area by 4, we get the area of the entire circle or the estimate of pi. ठीक है? अच्छा जी. So this is the circle, this is the unit circle. We take just this piece of that unit circle. We estimate its area and we multiply that by 4, so we get the estimate of the area of the entire circle. And since this is a unit circle, so its area is going to be equal to pi. So once we have an estimate of the area of the entire circle, so we have the estimate of the value of the pi. ठीक है? अच्छा. So far so good maybe. Now how do you, when you throw a dart, पहले तो ये कि आप dart throw करने को कैसे simulate करेंगे. This is an event, a physical event. Now we are going to simulate it. How are we going to simulate it? So whenever you throw a dart, it will land at some point. It will land at some point in this unit area. That point will be any random point. कोई भी point हो सकता है, कहीं पे भी वो land हो सकता है. ठीक है? Now, हर point पे we have an x coordinate and a y coordinate. For each point we have an x coordinate and a y coordinate. If we can generate x and y coordinates randomly, then we can simulate the random throw of a dart. ठीक है? तो हम x और y की values generate करेंगे between 0 and 1 क्योंकि this is a unit circle. Unit circle से मुराद इसका radius is equal to 1. ठीक है? इसका radius is equal to 1. Unit circle से ये मुराद कि ये length और ये length, this is 1. So the maximum value that y can have is 1. The maximum value that x can have is 1. So we can use the rand function in MATLAB which generates values between 0 and 1. ठीक है, तो हम randomly x और y की values generate करेंगे और हर x y का जो pair है that will basically show कि यहाँ पे dart land उसने land किया. ठीक है? This is one thing. So the first thing that we need to do is simulate the throw of a dart. The second thing that we need to do is count the number of darts which have landed in this circular region. ठीक है? Total darts जितने हमने फेंके हैं और the fraction of darts जो कि यहाँ पे land करेंगे. So वो जो fraction है that will give us an estimate of the area of this circular region. अब you know कि the equation of a circle क्या है? X square plus y square is equal to r square. If the circle is centered at the origin, so this is the equation of the circle. What do you mean by the equation of circle? So this is your circle. Equation of circle means कि ये जो circle के तमाम जो points हैं, they satisfy this equation. All the points on the circular boundary, they satisfy this equation. The x coordinate squared with the y coordinate और उनको दोनों add करें तो you get the radius square. ठीक है? अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो उसके लिए फिर ये रिलेशनशिप कैसे होगा? So if there is a point which is inside the circular boundary, for that point x square plus y square is less than r square. ठीक है? ठीक है? And anything outside this, ठीक है? So that is outside the circle. X square plus y square greater than r square. This is outside the circular region.
something on the boundary of the circular boundary or something inside the circle, उसके लिए we have this condition x square plus arc y square is less than or equal to r. So this is how we verify कि कौन सा डार्ट जो है वो यहाँ पे सर्कुलर रीजन में गिरा है और कौन सा इससे बाहर गिरा है. ठीक है, दिस इज हाउ वी वेरीफाई. अच्छा जी, सो अब हमें करना क्या है? This is how we are going to estimate the area, the value of pi. We are going to estimate the value of pi by estimating the area of a unit circle. Okay? And we are going to estimate the area of a unit circle by counting the fraction of darts which land in a unit circular region, in a piece of a unit circular region. ठीक है? और वो हम कैसे करेंगे? How will we simulate the throw of a darts? By generating random values for the x and y coordinates जहाँ पे वो dart land करेंगे. Once we do that, then we need to verify कि कौन से darts जो हैं वो सर्कल के अंदर हैं और कौन से उससे बाहर. So let us do that. ठीक है? So we have created a script file, and in this script file we are going to the first thing that we are going to do is we are going to generate random values for x and y in the range 0 to 1. ठीक है? और वो जो values होंगी that will basically simulate कि इस point पे या इस point पे ये dart जो है उसको हमने throw किया. So first of all we need to decide how many darts हम throw कर रहे हैं. ठीक है? So that will determine how many points we need to generate. ठीक है? अच्छा जी. So first of all let us generate vector x. So say we are going to simulate the throw of 1000 darts. ठीक है? 1000 darts हम throw करेंगे और उसमें फिर हमने काउंट करना है कितने सर्कुलर रीजन में गिरे, कितने उससे बाहर गिरे. ठीक है? So that means we have to generate 1000 values for the x coordinate random values and 1000 random values for the y coordinate. ठीक है? So how do we generate? So we need to use the rand function, and here we need to specify कि हमें एक रो वेक्टर चाहिए 1 by 1000 का. ठीक है? अच्छा, so let us try कि how does the rand function act. So rand function को जब आप कहते हैं ना कि जी 1 by 5 का जनरेट करें एक वेक्टर, sorry, so it generates a vector of size 1 by 5 और उस वेक्टर में जो वैल्यूज हैं उनकी रेंज है 0 से लेके 1 तक, हर वैल्यू इस रेंज में है. So what will this statement, this command do? It will generate the vector x जिसमें 1000 रैंडम वैल्यूज होंगी और ये जो 1000 रैंडम वैल्यूज हैं ये 0 से 1 के बीच में होंगी. ठीक है? Similarly y is equal to rand and then 1 by 1000. Acha. Now with these two statements, what have we done? We have basically generated 1000 random values for the x and y coordinates each. ठीक है? So हमने 1000 random points एक 2-dimensional plane में generate कर ली. ये तमाम points जो हैं they basically show the landing points for the darts. जो हमने darts throw किए हैं उन्होंने कहाँ कहाँ land किया है. These are basically those points. Now we need to show कि कितने points जो हैं वो सर्कल के अंदर लैंड कर गए और कितने उससे बाहर. ठीक है? सो हाउ आर वी गोइंग टू शो दैट? अच्छा, पहले जो हमने जो शो करने हैं कि जो सर्कल के अंदर हैं उनका हमने एक काउंट रखना है. ठीक है? अच्छा, सो फॉर दैट वी नीड अ वेरिएबल. हमने काउंट करना है कि कितने सर्कुलर रीजन के अंदर हैं. ठीक है? उसके अलावा जितने भी बाकी बच जाएंगे 1000 में से वो सारे सर्कुलर रीजन से बाहर होंगे. ठीक है? सो वी नीड टू काउंट के जितने सर्कुलर रीजन के अंदर हैं. सो फॉर एग्जांपल वी नीड we have this variable in count. So this is a variable which counts the number of darts that have landed inside the circle. ठीक है? So ये है जी number of darts that landed inside the circle. Okay?
अच्छा, नाउ हाउ डू वी वेरीफाई कि कौन सा डार्ट जो है वो सर्कल के अंदर आया, कौन सा बाहर। सो वी नीड टू चेक ऑल दीज पॉइंट्स वन बाय वन। हमारे पास 1000 पॉइंट्स हैं, वन बाय वन हमने इनको चेक करना है, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम वन, we'll go up until the 1000 point and then we'll see कि कौन सा कहाँ पे लैंड किया है। So for say index या in is equal to 1 to 1000। So हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट्स हैं वो वेक्टर x में हैं, जो y कोऑर्डिनेट्स हैं वो वेक्टर y में हैं। इसका स्टार्टिंग इंडेक्स 1 है, एंडिंग इंडेक्स 1000 है। इसका स्टार्टिंग इंडेक्स भी 1 है, एंडिंग इंडेक्स 1000 है। So we need to generate these indexes and then using these indexes we'll access individual values of x and y और फिर हम verify करेंगे कि आया वो जो पॉइंट है वो सर्कुलर रीजन के अंदर है या बाहर है, ठीक है। अच्छा जी, so how do we verify whether a given point is inside a circular region or not, ठीक है जी, बातें नहीं प्लीज। So if you remember, the equation for the circle is x square plus y square is equal to r square, ठीक है। So x square plus y square is equal to r square. Here r is equal to 1 and we assume that the circle is centered on the origin. So here the equation would be x square plus y square is equal to 1. For any point that is on the circular boundary or inside the circle, x square plus y square should be less than or equal to 1. If it is, then that point is either on the circular boundary or inside the circle, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट को काउंट करना है। इफ दैट इज नॉट द केस, फिर हम इस पॉइंट को इग्नोर कर लेते हैं। सो दैट मीन्स वी नीड टू यूज द इफ कंडीशन। इफ, अच्छा जी, x इन का स्क्वायर प्लस y इन का स्क्वायर is less than or equal to 1, that means this particular point is inside the circle। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वी हैव द वेक्टर x, उसमें हम ये इंडेक्स को हम ज़रा चेंज कर देते हैं, j कर देते हैं, ठीक है, या k कर देते हैं। So we are accessing the point on the kth index from both these vectors। We are accessing the x coordinate and y coordinate on the kth index और हम उनका स्क्वायर ले रहे हैं और ऐड कर रहे हैं, एंड वी आर लुकिंग कि ये लेस देन और इक्वल टू 1 है या नहीं। इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू 1, दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट एक्स के है और y कोऑर्डिनेट y के है, दिस पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल एंड वी नीड टू काउंट दिस पॉइंट। हमें इस पॉइंट को काउंट करना है। सो वी इंक्रीमेंट इन काउंट, ठीक है। अच्छा, एंड वी वांट टू शो दिस पॉइंट, इस पॉइंट को हम प्लॉट भी करना चाहते हैं, ठीक है। और प्लॉट कैसे करना चाहते हैं, इस पॉइंट को हम ऐसे प्लॉट करना चाहते हैं कि ये हमें एक इंडिविजुअल डॉट की शक्ल में नजर आए और एक खास किस्म के कलर में नजर आए, ठीक है जी। अच्छा, दिस इज अ स्केलर, सो आई होप कि इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक्स के basically we are accessing a particular value inside a vector, so that value is then a scalar, it is not, यानी हम पूरे वेक्टर के लिए नहीं कर रहे, ठीक है। दिस इज अ स्केलर, बात है नहीं प्लीज। द क्वेश्चन वाज के वी आर फाइंडिंग आउट द एक्सपोनेंट और पावर, so shouldn't we use the dot operator here, the element wise power, ठीक है। So we need to use the element wise power if we are taking the power of a vector, but this here is a scalar, this is the kth entry or element inside the vector x, so this is a scalar, so we don't need to use element wise power। अच्छा, so we need to plot this this point, हम इस point को हम plot भी करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि हमें नजर आए कि ये वाला जो डार्ट है ये कौन सा वाला है और कहाँ पे इसने लैंड किया। So for this we want to use scatter plot। अब तक आपने plot function use किया, plot function plots
अ लाइन प्लॉट, हर दो पॉइंट्स को वो लाइन के जरिए ज्वाइन करता है. इन दिस पर्टिकुलर केस वी डोंट वांट कि ये पॉइंट्स आपस में ज्वाइन हो. हम चाहते हैं कि पॉइंट्स इंडिविजुअली हमें नजर आएं. ठीक है. सो वी यूज द स्कैटर प्लॉट. अब स्कैटर प्लॉट क्या करता है, उसमें जो भी पॉइंट आप प्रिंट करना चाहते हैं, सो यू स्पेसिफाई द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट. और अगर आपके पास वेक्टर्स हैं, सो यू एक वेक्टर में यू स्पेसिफाई ऑल द वैल्यूज फॉर द एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरे वेक्टर में यू स्पेसिफाई ऑल द वैल्यूज फॉर द वाई कोऑर्डिनेट. सो वी वांट टू प्लॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एक्स एंड वाई जिसका कोऑर्डिनेट है, सॉरी, एक्स के और वाई के. ठीक है. हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को प्लॉट करना चाहते हैं. ठीक है. अच्छा, सिंस दिस पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल, ठीक है, इट इज इनसाइड द सर्कल, सो इसको हम एक पर्टिकुलर कलर में से ब्लू कलर में प्रिंट करना चाहते हैं या प्लॉट करना चाहते हैं. ठीक है. ओके, सो क्वाइट प्लीज. सो वी वांट टू शो कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है जिसके लिए हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 1, this point landed inside the circle, so we want to plot it in a way that it is different from those points or darts which land outside the circle. ठीक है. अच्छा, so we need here an else block as well. हमें else भी यहाँ पे चाहिए होगा. क्यों चाहिए? क्योंकि जो पॉइंट इस सर्कल के अंदर जिसने लैंड नहीं किया, वी वांट दैट पॉइंट टू बी कलर इन रेड. ठीक है. से भी दिस इज हाउ वी वांट. अच्छा, नाउ यहाँ पे एक बात पहले से आप देख लें कि यहाँ पे वी आर कॉलिंग द स्कैटर फंक्शन एंड वी आर कॉलिंग द स्कैटर फंक्शन इनसाइड अ लूप. ठीक है. तो स्कैटर फंक्शन जस्ट लाइक प्लॉट फंक्शन, इफ यू आर calling it again and again, the new plot will erase the previous plot. इसका मतलब ये है कि before we enter this loop we need to call hold on, and after we exit it we can say hold off. तो इससे क्या होगा कि जो नया प्लॉट आएगा वो पुराने वाले को इरेज नहीं करेगा. ठीक है. सो वील सी इट टुगेदर. अच्छा जी. सो वंस वी आर डन विद दिस लूप, जब ये लूप खत्म हो जाएगा इसकी एग्जीक्यूशन, तो हमारे पास वहाँ पे एक तो आपके पास वो स्कैटर प्लॉट आ जाएगा. तो यू क्लियरली सी कि जो 1000 डार्ट्स हमने फेंके थे उसमें कितने डार्ट्स सर्कल के अंदर लैंड करके कितने बाहर. सो यू सी ब्लू रीजन एंड रेड रीजन. अच्छा, अब जितने डार्ट्स सर्कल के अंदर लैंड कर गए, द फ्रैक्शन ऑफ दोज डार्ट्स दैट गिव्स अस एन एस्टिमेट ऑफ द एरिया ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द सर्कल. ठीक है. तो ये जो है, अगर हम इस क्वांटिटी को डिस्प्ले करें, डिस्प्ले वैल्यू से वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू, ठीक है, या इसको हम कहते हैं जी एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ पाई. एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू, अच्छा, this quantity in count divided by 1000. 1000 is the total number of darts that we threw. In count is the number of darts that landed inside the circular region. So their ratio, this gives us estimate of the area of this region. It gives us estimate of the area of this region. ये जो region है, ठीक है. Now this region is 1/4 of the circle. तो अगर हम इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें विद 4, ठीक है, इफ वी मल्टीप्लाई दिस क्वांटिटी बाय 4, सो वील गेट द एस्टिमेट ऑफ द एरिया ऑफ द एंटायर सर्कल. ठीक है. ये सर्कल का चौथाई हिस्सा है जिसका हमने एरिया एस्टिमेट किया. इसको अगर 4 से ज़रब दें तो पूरे यूनिट सर्कल के एरिया का एस्टिमेट आ जाएगा. एंड सिंस दिस सर्कल इज अ यूनिट सर्कल, सो इसका जो एरिया इट इज इक्वल टू पाई. सो ये जो क्वांटिटी है, this will basically give us the estimate of the area of pi. ठीक है.
अच्छा, दिस इज व्हाट वी थिंक कि ऐसा होगा. नाउ लेट्स सी कि ऐसे होता भी है या नहीं. So let us save and run this file and let's see what happens. अच्छा जी, ये क्या कह रहा है, अननोन प्रॉपर्टी. अच्छा, हमने कोई प्लॉटिंग में कोई मसला किया है. ठीक है. ये जो कलर हम शायद प्रोवाइड कर रहे हैं, ये उस सीक्वेंस में नहीं है. ठीक है. या तो हम कहें कि, एक सेकेंड, बातें नहीं प्लीज़. So let us say color blue and then color red. बातें नहीं प्लीज़. एक सेकेंड. I guess we are making another mistake. Property color. So we cannot. बातें नहीं please. We cannot use the uh, property and name pairs just like for the plot function. अच्छा जी, first of all, scatter के लिए you specify the size and then color. Okay. So let us do that. Say 2. So this is the size of the circle. Okay. And then the color. So let's see. Property. Acha, let us try it without these things. Batani, please. Batani, please. Acha, Batani, here you can see the darts landing. Okay? They are not properly colored. So the program is not done executing yet. Okay? Let us first see कि वो जो हमारे पास values हैं वो क्या आती हैं, and then we. The scatter plot is a little slow. It takes a lot of time. Okay? When we fix the color issue, then you'll see कि जो points जो हैं वो circular region के अंदर fall करते हैं. So they you'll see a clear circular boundary around that point. ठीक है.
राइट प्लीज देखें, ये बीच में हमने इसको प्री मेच्योरली टर्मिनेट कर दिया, बट इफ़ यू लुक एट द वैल्यूज से इन काउंट जो है दिस इज 640 और के जितना काउंट किया था दैट इज 838, ठीक है। अगर हम फर्स्ट किया 640 और 838 का रेशो कैलकुलेट करें, so it comes out to be 0.763. Now if you multiply that with 4, so you are 3.05. Now this is close to pi, ठीक है, एग्जैक्टली उसके बराबर नहीं है, बट ये पॉइंट्स जब आप बढ़ाते जाएंगे ना, यहाँ हमने उसको प्री मेच्योरली टर्मिनेट कर दिया। इफ़ वी से रिमूव द प्लॉटिंग, ये जो प्लॉटिंग का काम है इसको हम फर्स्ट किया फिलहाल नहीं करते, ठीक है। लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ पाई सिर्फ। So estimated value of pi is 3.0840, ठीक है। If you increase the number of darts, say for example darts को हम बढ़ा देते हैं, देन आपका जो एस्टिमेट है इट विल गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू द एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। अच्छा, ये उसी 10,000 के साथ हम बार बार इसको रन कर रहे हैं, सो देयर विल बी फ्लक्चुएशन क्योंकि ये सारे रैंडम नंबर्स हैं, ठीक है। बट इफ़ वी कैन विजुलाइज दिस, इसको अगर हम प्रॉपरली विजुलाइज कर सकें, से let us fix the scatter function. अच्छा बातें नहीं प्लीज। नाउ दिस इज हाउ यू, when you call the scatter function, this is how it works, ठीक है। you have the x coordinate की वैल्यू आप स्पेसिफाई करते हैं, y coordinate की वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं, देन यू स्पेसिफाई द साइज ऑफ द मार्कर, ठीक है, और फिर उसका कलर, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज। इफ इट वर्क्स फाइन, इफ इट डजंट देन आई विल चेक इट आउट कि ये क्यों काम नहीं कर रहा एंड हाउ टू मेक इट वर्क, एंड देन आई विल शेयर इट विद यू लेटर ऑन, ठीक है। बट दिस इज हाउ इट इज, दिस इज हाउ इट शुड वर्क। नाउ लेट अस कॉल दिस, अभी दिस वुड बी स्लो, ये तो अब 10,000 है, इसको 100 पॉइंट्स के लिए करते हैं से। अच्छा, the program is done executing. The estimated value of pi is 3/4. Let's see what do we have in the figure. अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें ना, बातें नहीं प्लीज। So let me increase its size, ये आपको ताकि नजर आए। Let the size be say 10.
बाय साइज वी मीन द साइज ऑफ द मार्कर जो कि उस पॉइंट को डेमोन्स्ट्रेट डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है. So now our estimate is a little poorer than the previous estimate. अच्छा, this is what you get. ये देखें ना, ये अगर पॉइंट्स की तादाद आप बढ़ा देंगे so you'll see a clear circular boundary here. ठीक है, इसको मज़ीद बड़ा कर देते हैं, make it say 20. So if you see here now, Batini please. So this is the result for 100 random throws of darts. ठीक है, 100 darts जो हैं वो randomly throw किए गए, and these are the ones in blue that you see. These are the darts that have landed inside the circular region. और जो the number of reds हैं, जो reds आपको, these are the darts that landed outside the circular region. These are the darts that have landed outside the circular region. ये जो red में आपको नजर आ रहे हैं. अच्छा, let me increase these darts and see. अच्छा, बातें नहीं की, आप कौन सी जुबान में हैं? So let us wait and see how does the scatter plot look for 1000 points. Asha, here we use the scatter plot. Why did we use the scatter plot? Because we wanted to look at individual points. हर point को separately देखना चाहते थे. Line plots they connect individual points. हर दो points को एक line के जरिए जोड़ देते हैं. So scatter plots are useful in situations where you want to look at individual points. हर point individually कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है? So in those situations, scatter plots are useful. In this particular case, we wanted to look at कौन सा डार्ट कहाँ पे लैंड कर रहा है, ठीक है? How many land inside the circular region, how many land outside the circular region. If you increase the number of darts, तो आपको वहाँ पे जो नजर आएगा, जो रीजन आपको नजर आएगा वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कलर हो तो नजर आएगा. ब्लू रीजन जो है वो सर्कुलर शेप उसकी होगी. रेड जो है, it would be the remaining area would be colored in red. So in this particular lab session, we demonstrated the use of scatter plot, and we also demonstrated the use of an important simulation technique. ठीक है, Monte Carlo simulation इसको कहते हैं, और इसको use किया हमने in order to estimate the value of pi. So you can use it in order to estimate the value of pi, in order to estimate the area of any curve, area under any curve, sorry. So if you can estimate area under a curve, that means you can estimate a definite integral. So you can use this technique to estimate any definite integral. कोई भी definite integral हो ना. What is integration? Integration is basically calculating the area under a curve of under the curve of function. ठीक है? तो अगर आप definite integral को estimate करना चाहते हैं, so you can use this technique in order to estimate that definite integral, any definite integral. But you have to modify, थोड़ा सा इसको तब्दील करना होगा. The principle would remain the same कि you would generate random values और फिर उन values को आप देखेंगे. Now the estimated value is 3.07. बात नहीं please. Let us look at the figure. ठीक है, so this is how the figure looks now.
So the blue darts, they basically, the fraction of blue darts, they represent the area of the circle. ठीक है, जो circular region है ना, ये उसका quarter है, तो ये उस area को estimate करता है. ठीक है. So by using simple random numbers, you can do something uh, something as analytic and mathematical as calculating or estimating the area of a circle or the area, the value of pi. ठीक है, उसको आप estimate कर सकते हैं. Do you have any question? जी, कितने होंगे? इनकी टोटल तादाद 1000 है. ठीक है. How do we know that? बातें नहीं प्लीज. So here we generated 1000 random values for x, 1000 random values for y. So x और y coordinates हजार हमने randomly generate किए. So one pair of x and y coordinates corresponds to one point. ठीक है. ये जो आपको यहाँ ग्राफ में एक पॉइंट नजर आता है ना, कोई भी एक पॉइंट, so this corresponds to one pair of x and y values. So हमारे पास 1000 पेयर्स हैं, तो ये 1000 पॉइंट्स हैं. These are 1000 circles, that small circles that you see here. अब उसमें से कितने सर्कुलर रीजन के अंदर हैं, कितने बाहर हैं, उनको हमने डिफरेंटली कलर कर दिया ताकि यू कैन सी. हाउ डिड वी चेक कि कितने, कौन से सर्कुलर रीजन में के अंदर लैंड कर रहे हैं, कौन से बाहर लैंड कर रहे हैं. वी यूज दिस फार्मूला, दिस रिलेशनशिप. दिस इज द रिलेशनशिप फॉर अ सर्कल. सर्कल का फार्मूला है कि सर्कुलर बाउंड्री के ऊपर जो भी पॉइंट होगा, इट वुड सेटिस्फाई दिस रिलेशनशिप. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वुड बी इक्वल टू आर स्क्वायर. तो उस रिलेशनशिप को हमने यूज किया इन ऑर्डर टू वेरीफाई कि कौन सा लैंड अंदर कर रहा है, कौन सा बाहर. एनी अदर क्वेश्चन? जी जी, किस चीज़ की तादाद? जी बिल्कुल, हम जो ब्लू हैं उनकी तादाद हम इन काउंट वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं. द ब्लूज, उनकी तादाद हम स्टोर कर रहे हैं इन द वेरिएबल इन काउंट. वो है 768. 768 लैंड करते हैं इनसाइड द सर्कुलर रीजन. 1000 minus 768 वो लैंड कर रहे हैं आउटसाइड द सर्कुलर रीजन. So you can find out. That is important. Without knowing these values of this fraction, we cannot estimate the value of pi. उसको हम estimate नहीं कर सकते. ठीक है? So the fraction that lands inside the circular region, वही हमारा pi का estimate है. So we have to keep track of the blues. कितने blue हैं? हाँ, कर सकते हैं. अच्छा, the point is, अच्छा, question is, sorry, बातें नहीं प्लीज, कि ये हमने एस्टिमेट किया, ये जो हमने एस्टिमेशन की, दिस वाज फॉर दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट जिसमें x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है. अगर हम इस रीजन के लिए करना चाहें तो फिर कैसे करेंगे? अब यहाँ पे आप देखें ना, यहाँ पे x की रेंज क्या होगी? इट वुड बी -1 to 0. और y की रेंज क्या होगी? 0 to 1. सो y को तो आपने चेंज नहीं करना, बट x को चेंज करना है. ठीक है. सो यू हैव टू स्केल योर रैंडम नंबर जनरेट, जो रैंडम नंबर आप जनरेट करें उनको स्केल करना है. y वुड रिमेन द सेम. हमें y चाहिए 0 से 1 के बीच, फाइन. x हमें चाहिए -1 से 0 के बीच. अच्छा, तो ये जो x हमारे पास यहाँ जनरेट हो रहा है, ये किस रेंज में है? 0 to 1. ठीक है. अगर इसके साथ हम -1 ऐड कर दें तो फिर ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देख लें, ये जो फंक्शन है rand, when you call the rand function, it gives you a value between 0 and 1. If you add -1 with it, ठीक है, इसके साथ हम क्या करते हैं? -1 ऐड कर देते हैं या 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. आप इसकी मिनिमम वैल्यू से भी 1 सब्ट्रैक्ट कर लें, मैक्सिमम वैल्यू से 1 सब्ट्रैक्ट. दिस वुड बी -1 to 1 minus 1 is 0, 0 minus 1 is -1. So simply अगर हम ये काम करते हैं कि ये जो रैंडम वैल्यू जनरेट हो रही है, दिस इज बिटवीन 0 एंड 1, इससे अगर हम -1 सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है, तो हमारे पास फिर जो x की वैल्यू जनरेट होंगी वो उस क्वाड्रेंट में. कर लिए? अच्छा,
वाइट प्लीज, ये कौन रहे के पीछे है? क्या जरूर कर रहा हूँ आपको, जरूर कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ देखिए, दिस फंक्शन हमने x को स्केल करना है। x को कैसे स्केल करना है? वी नीड x टू बी इन दिस क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में x की जो सबसे कम वैल्यू है -1 और सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है दैट इज 0। सो हमने -1 to 0 की रेंज में लाना है, y को नहीं छेड़ना। सो y वुड रिमेन द सेम, इसको हमने नहीं छेड़ना। x को स्केल करना है। x को मैं कह रहा हूँ कि हम स्केल कर सकते हैं बाय जस्ट सब्ट्रैक्टिंग -1 फ्रॉम इट। तो x की मिनिमम इस ये जो चीज़ है, ये जो फंक्शन है दिस, इसकी मिनिमम वैल्यू है 0, मैक्सिमम वैल्यू है 1। तो अगर आप मिनिमम वैल्यू से -1 सब्ट्रैक्ट करें तो मिनिमम वैल्यू जो आपको फिर मिलेगी वो -1 होगी, और 1 से -1 करें तो वो 0 हो जाती है। तो यू कैन स्केल इट अप लाइक दिस। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये रैंड फंक्शन है, इसको मैंने कॉल किया 1/5 का एक रो वेक्टर जनरेट किया, और उसी रैंड फंक्शन से फिर मैंने -1 सब्ट्रैक्ट किया, तो वो वैल्यूज़ जो हैं वो स्केल अप हो जाती हैं, मतलब उनकी उसकी जो रेंज है वो चेंज हो जाती है। अच्छा, अगर इसको हम थोड़ा सा मज़ीद से बढ़ा दें ना 10, तो मे बी आपको ज़रा ज़्यादा वैल्यूज़ में वेरिएशन नज़र आए। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल वो -1 से करीब तर हैं, ये 0 से करीब हैं। ठीक है, तो ये आपको उस रेंज में वैल्यूज़ देंगे। ये आपने वो वैल्यूज़ जनरेट कर ली। अब इस फार्मूले को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, दिस वुड रिमेन द सेम। ठीक है, क्योंकि आप उनका स्क्वायर ले रहे हैं तो इट डज नॉट अफेक्ट इट, तो दिस वुड रिमेन द सेम। तो अब जो आप एस्टिमेट करेंगे, सो दैट वुड बी फॉर दिस क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए वो एस्टिमेट है। आप पूरे सर्कल के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन मेक एन एस्टिमेट फॉर द एंटायर सर्कल, लेकिन फिर वो यूनिट सर्कल है ना, फिर आपने डायमीटर को देखना है, फिर वो जो रेंज होगी वो 2 की रेंज होगी। ठीक है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको सिंपल रखने के लिए यूँ किया। यानी जी, पूरे सर्कल को भी आप नहीं, कलर जो है ना वो सिंपल हमने इनसाइड द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल के लिए रखा है, कलर के डिफरेंट होने की जरूरत नहीं है। एनी अदर क्वेश्चन?